So, very well, guys. Very good morning. I sent you people this Titanic code, kind of, जो कल हम करके देख रहे थे. We did many things, some tips, some tricks. You people ran that. देख लिया ये आप लोगों ने रन करके. Question, confusion. And tell me this also. Currently, this code is readable. Shall I zoom it further? Maybe now. So let's continue again. We'll come up with some new aspects. जो मैंने थोड़ा सा भेजा भी थे. My intention was that if you run it, you will realize that what is happening. Maybe you will feel something. Maybe you will have queries, and maybe you will be confused about a few things. But anyway, the same code which I have sent to you, the same I am running. Most of it we ran yesterday itself. Read the data, bind it together. We have discussed why. Uppercase, lowercase, duplicacy test, which eventually we figure out that there are no duplicates here. Rather than treating like missing value देख लेते हैं और ये देख लेते हैं वो देख लेते हैं, so in this code I have kept univariate first. We discussed this about CRISP-DM also. अगर और कुछ समझ नहीं आता तो यूनिवेरिएट शुरू कर दो. जब एक एक कॉलम उठा के देखना शुरू करोगे अपने आप मिसिंग वैल्यूज भी आ जाएंगे, आउटलायर्स भी आ जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक सब पता चल जाएगा धीरे. तो we begin with univariate. What I have done here is and distinct is nothing but to check categories of each column. हर कॉलम में कितने कैटेगरीज हैं. पैसेंजर आईडी तो पैसेंजर आईडी है. इट इज जस्ट सीरियल नंबर, लेकिन एज नंबर उसका कोई मतलब नहीं है. सो आई एम कन्वर्टिंग इट टू कैरेक्टर. सर्वाइव इज टारगेट वेरिएबल. अगेन आई हैव कन्वर्टेड इट टू कैरेक्टर. कैटेगरी है ना, 01 मतलब नंबर 01 नहीं. सेम गोज फॉर पैसेंजर क्लास. टाइटल, यू प्रेटी मच नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट टाइटल. तो नेम की जगह टाइटल एक्सट्रैक्ट किया है, शायद कुछ बात बन जाए. So there were many titles. I checked them against gender, and according to them, I have generalized them into some major categories: Mr., Miss, Mrs., Master, this kind of thing. ठीक है, ये तो मिल जाएंगे. हमने टाइटल निकाल लिया था. हमने ये देख लिया हर टाइटल में किस किस का जेंडर क्या क्या आ रहा था. डिपेंडिंग ऑन दैट उस टाइटल को हमने अकॉर्डिंगली उस कैटेगरी में डाल दिया. Survival rate, just a glimpse of bivariate thing. I am seeing that how many in each title category survived and didn't survive. Okay, gender, you have seen that enough. Okay, tip, SP and pouch. We discovered, we have already figured it out. These are discrete continuous. I mean, they are numbers, but they cannot have decimal values. Obviously, these are number of people. It cannot have decimal value. Checking outlier, treating it, checking outlier, treating it, and finally I derived a metric which many of you have also done. If I do sibling plus parent children, I will find out how many relatives were traveling with this person. तो वही एक metric ड्राइव किया है. यही बात हुई ना.
या सिबलिंग प्लस स्पाउस प्लस पेरेंट प्लस चिल्ड्रन, ऑल इन ऑल इसके साथ क्या कौन फैमिली ट्रैवल कर रहे थे, हाउ मेनी मेंबर्स वर ट्रैवलिंग विद। सो इट्स जस्ट दैट। टिकट नंबर हमें पता है कि प्रैक्टिकली इसका कोई मतलब नहीं होगा, इट मे ओनली फूल माई मॉडल, सो ड्रॉप इट। पेयर, पेयर में एन ए था, हमने ट्रीट किया था, देखा था 8.05 आया था। आउटलायर चेक किया तो आउटलायर में मिला, आउटलायर ट्रीट किया। पेयर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैबिन, ओके, मिसिंग वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थे, ड्रॉप्ड। एम्बार्क, मिसिंग वैल्यूज थे, we checked with this ggplot and found out that it should be C. Age, we found out, we established that yesterday, एज में बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज हैं। तो rather than doing just mean median, we preferred Mice algorithm। जब माइस एल्गोरिथम देख लिया, माइस से इम्प्यूटेशन हो गया, अब आउटलायर चेक किया, वन पॉसिबली वन आउटलायर, एक्चुअली नॉट वेरी डिस्टेंट बट ओके, आउटलायर तो है ही, ट्रीटेड इट। स्केलिंग continuous variables, scale them down, डमी वेरिएबल बनाया। नाउ दिस इफ यू डू इट योरसेल्फ ये आप लोगों को पता चल जाता, बट एनीवे नाउ आई विल हैव टू गो इनटू दैट। सर्वाइव्ड, मैंने कैरेक्टर बना दिया था, रिमेंबर स्टार्टिंग में, अभी थोड़ी देर पहले मेरे को मैं कह रहा था कि 0-1 जैसा कोई मतलब नहीं है उसका, इट मीन सर्वाइव्ड एंड नॉन सर्वाइव्ड, तो मैंने बोला कि उसको कैटेगोरिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मे बी उन 0-1 को मैं सर्वाइव्ड नॉन सर्वाइव्ड यस नो ट्रू फॉल्स कुछ भी कहता, या 0-1 को ही मैं कहता दीज आर कैरेक्टर 0 एंड 1। अभी क्या हुआ, डमी जब बनाया उसने 3 कॉलम बना दिए उनके, सर्वाइव्ड 0 के लिए एक कॉलम, सर्वाइव्ड NA जो मिसिंग थे उनका एक कॉलम, और सर्वाइव्ड 1 जो सर्वाइव कर गए थे उनका एक कॉलम। So many columns are not helping, now I have to manually get rid of them. तो 0 एंड NA I have deleted। सर्वाइव्ड 1 जो कॉलम था उससे अगेन मैंने एक सर्वाइव्ड कॉलम बनाया और सर्वाइव्ड 1 को डिलीट कर दिया। तो eventually I have ended up with master data like this, पैसेंजर ID which is character, all others डमी बन चुके हैं, बाकी सारे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स स्केल हो चुके हैं, एक मेट्रिक मिला था डेराइव करने के लिए, वो डेराइव भी कर लिया, एंड सर्वाइव्ड कॉलम इज हियर, न्यूमेरिक 0 एंड 1। Seems like we are good to go with logistic regression। रिमेंबर हमने डेटा पहले ज्वाइन किया था, आई एम नॉट सेइंग मर्ज, मर्ज मीन समथिंग एल्स, मर्ज वो होता है जो स्पार्क फंड वाले केस में देखा था। टू डेटा सेट्स दे हैव डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑफ सेम सेम की वैल्यूज, यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ये मर्ज नहीं है, दीज आर जस्ट रोज आफ्टर रोज। उनको वापस ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर दिया, हाँ यही थे ट्रेन और टेस्ट, 1 से लेकर के 891 तक ट्रेन डेटा था, बाकी ये वाला टेस्ट डेटा था। नाउ समथिंग जो अभी तक नहीं किया था आप लोगों ने, टेबल फंक्शन, यू वेरी वेल नो टेबल फंक्शन क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी। ट्रेन डेटा सेट जो अवेलेबल डेटा था, जहां पर मेरे को सर्वाइव पता था कि कौन सर्वाइव किए हैं कौन नहीं किए, इट इज टेलिंग यू 344 342 सर्वाइव एंड सम 549 डिडंट सर्वाइव। देयर इज अ फंक्शन prop टेबल आल्सो, देखा है किसी ने करके prop टेबल अभी तक, आई डोंट थिंक सो, एनीबॉडी चेक दिस आउट, prop टेबल कभी कहीं देख लिया हो? नहीं, ओके ओके। prop टेबल स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शन टेबल, राइट सिद्धार्थ। वही जो टेबल फंक्शन ने मेरे को दिखाया था, इस टेबल फंक्शन ने मेरे को क्या दिखाया था, नंबर्स, इसी का मैं अगर prop टेबल कर लूं, ये दिखा देता है मेरे को प्रोपोर्शन।
यानी टोटल में से कितने परसेंट सर्वाइव किए और कितने परसेंट नहीं किए, मल्टीप्लाई बाय 100 यानी परसेंटेज देख रहा हूँ। तो इट इज टेलिंग मी 61% didn't survive, 38% survived. No, this is not question of probability, शुभम। ये तो डेटा गिवन है ना, इसमें तो प्रोबेबिलिटी का अभी तो कोई बात ही नहीं हो रही। दिस इज एग्जैक्टली दिस इज द यू नो दिस इज रॉक सॉलिड मेटल डेटा। ये तो पता है मेरे को, अभी तक प्रोबेबिलिटी की कोई बात नहीं। आई वॉज गेटिंग समवेयर एल्स विद दिस। सी, जब आपका टारगेट वेरिएबल था, योर टारगेट इज कॉन्टिन्यूअस। व्हाई आई एम डूइंग दिस? आई कैन टाइप जस्ट अवेलेबल डेटा आपका था and your target variable was continuous target। हमें क्या करना था, अवेलेबल डेटा से ही दो डेटा सेट निकालने थे। वन विल बिकम ट्रेन, अदर विल बिकम वैलिडेशन। और हमने क्या किया था, वी डिसाइडेड टू डू रैंडम सैम्पलिंग। नाउ सैम्पल फंक्शन डज purely random samples which we have seen many times। purely random sample होता है। when it is categorical data, then there is a bit trick with that। if you have available data and your target variable is categorical, in this case 0 and 1। now think about it, अगर मैंने प्योरली रैंडम सैंपल किया, एक ट्रेन डेटा बनेगा, एक वैलिडेशन डेटा बनेगा। इस ट्रेन डेटा सेट में मेरे टारगेट में आने थे 0 और 1। पता लगा 0 तो आ गए 90%, 1 आए केवल 10%। हाँ, हो सकता है, प्योरली रैंडम हो रहा है भाई, कंट्रोल तो है नहीं तुम्हारा। समझ रहे हो? एक्चुअल डेटा सेट में 0 और 1 थे, अभी जो देखा हमने 61% और 1 थे कुछ, ये शायद 61, हाँ राउंड ऑफ करेंगे तो 62 हो जाएगा। 1 थे 32, 38%। ये ओरिजिनल डेटा में था जो मेरे को दिया गया था। पता लगा रैंडम सैम्पलिंग ने कुछ ऐसा कर दिया, वैलिडेशन में 0 और 1 50-50 हो गए, ट्रेनिंग में 0 और 1 में बहुत ही अनइवन हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात समझ आ गई? क्या प्रॉब्लम होगा डायरेक्ट सैंपल फंक्शन अगर रन कर दूंगा तो? डायरेक्ट सैंपल फंक्शन अगर रन कर दूंगा, आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दीज रेशियोज। मेरा टारगेट वेरिएबल अभी कैटेगोरिकल है। कैटेगोरिकल है तो उसमें क्लासेस हैं, उन क्लासेस का कुछ प्रोपोर्शन था अवेलेबल डेटा में। इट इज वेरी वेरी लाइकली दैट इट विल बी डिस्टर्ब। if not very likely, it is possible that it may be disturbed way beyond you know way beyond balance। तो ये प्रॉब्लम रहता है कैटेगोरिकल वेरिएबल में। तो दैट्स व्हाई आई वांट इट टू बी, आई डोंट वांट दिस रेशियो टू बी डिस्टर्ब। तो इसी के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, द पैकेज इज car tools, ca tools, ये टाइप करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा। एंड ca tools में अगेन देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड sample dot split। तो ca tool सिंपल फंक्शन है, सिंपल सिंटैक्स है, फंक्शन और भी हैं सेम काम करने के लिए। सो इट इज़ वेरी जनरल कॉन्सेप्ट। बात समझ आ गई होगी आप लोगों को भी, सिंपल सी बात थी। इट इज जस्ट दैट ये सबसे पहले हमने बात नहीं की थी। तो वही सेट सीड करना है, बिकॉज कुछ रैंडम होने वाला है। सैंपल तो रैंडम ही होगा, बट मैं सैंपल डॉट स्प्लिट में क्या बता रहा हूँ,
that this column's category ratios should be maintained. समझ आती है बात? मेरे पास अवेलेबल डेटा में रेशो उसके कैटेगरीज में 61.6 is to 38.4 कुछ ऐसा था. I want that ratio to be maintained while splitting. अब बात ठीक है, सैंपल स्प्लिट को हमने ये बता दिया कि इस कॉलम की रेशोज मेंटेन करनी है, और अब मैं बता रहा हूँ कि स्प्लिट रेशो क्या रहेगा. वही 75-25 जो हम रखते हैं, ऐसा ही तो रखते हैं. 70-30, 75-25, इसके बीच में कुछ रख सकते हैं, तो दैट्स फाइन, वही कर रहे हैं. ठीक है, सैंपल से थोड़ा सा इसका आउटपुट डिफरेंट आता है. कैसा आता है? सैंपल में क्या आते हैं? रो नंबर्स. ये रो नंबर नहीं बताएगा, ये ट्रू और फॉल्स बताएगा कि ये वाली रो उठानी है, ये वाली रो नहीं उठानी. तो थोड़ा सा डिफरेंट है उससे. बाकी वैसे ही रैंडम सैंपल, सेट सीड. तो रैंडम सैंपल प्रोवाइडेड दैट रेशियोज विल बी कंटेंट. अब काम आसान है. मैं क्या कह रहा हूँ? ट्रेन, जो शुरू में ट्रेन डेटा था, अवेलेबल डेटा, उसे क्लीन वगैरह कर लिया, डमी में कन्वर्ट कर लिया, सब चीज़ हो गई. अब उसमें से, हाँ जी, जहाँ जहाँ इंडेक्स इसने ट्रू बताया है 75% ऑफ टाइम्स, उसे तो पहुँचा दो कहाँ? TRN पे. तो वो तो मतलब मेरे मॉडल की ट्रेनिंग के लिए हो गए. और यही अवेलेबल डेटा में से कौन सा इंडेक्स? नॉट इंडेक्स, जहाँ ट्रू नहीं था उसे पहुँचा दो कहाँ पे? वैलिडेशन डेटा पे. आई थिंक इफ यू आर पेइंग अटेंशन, वो देखते रहना. अगर रन कर पा रहे हो रन भी कर लेना, नहीं तो बाद में कर लेना, कोई ऐसी वो नहीं है. फिलहाल जस्ट देख सकते हो यहीं मेरी स्क्रीन पे. स्प्लिट हो गया ठीक ठाक. ट्रेन डेटा सेट कुछ हो गया 668. वैलिडेशन में कुछ 200 रोज चली गई. आई थिंक इट इज 75-25 रेशियो. तो डोंट ट्राई टू कोड. कोड तो सारा मिला हुआ है आपको. रन कर पाओ तो रन कर देना, बता देना मेरे को अगर करना हो तो. आई विल हॉट. नेक्स्ट इज, चेक कर लें. अवेलेबल डेटा में प्रोपोर्शन था इतना इतना. अवेलेबल डेटा, ट्रेन डेटा, TRAIN, जो शुरू में मिला था, जिसे मैंने क्लीन वगैरह करके लाया. नाउ दिस इज स्प्लिटेड डेटा, जो स्प्लिट करके मैंने TRN बनाया है, जिससे मैं मॉडल ट्रेन करूंगा. इसके प्रोपोर्शन है कितने? उतने ही. वैलिडेशन का प्रोपोर्शन है कितना? उतना ही. यही करना चाह रहा था, यही सोच रहे थे थोड़ी देर पहले कि ऐसा हो जाए तो बात बन जाएगी. हो गया काम. सो द रेशियोज ऑफ कैटेगरीज आर मेंटेन्ड इन माय टारगेट वेरिएबल. यहाँ तक ठीक ठाक. चलूँ आगे? बताते रहना जल्दी जल्दी. चलो चलते हैं अब मॉडल की तरफ. लेट्स गो फॉर मॉडल बिल्डिंग. पहला मॉडल, यू नो द ड्रिल. अब तो काम आसान था. टारगेट टिल्डा डॉट यानी बाकी सारों में डेटा में आई एम सेइंग ट्रेन, ट्रेन -1. -1 यानी किस लिए -1 क्यों चाहिए? रिमेंबर ये बात पहले भी हुई थी जब आपका पहला प्रोजेक्ट कर रहे थे अपना कार प्राइसेस वाला. ये यूनिक की को ड्रॉप नहीं करते हैं. ये यूनिक की को ड्रॉप नहीं करते हैं. इसका काम पड़ेगा आगे. अगर मैं डेटा से ही डिलीट कर दूंगा तो मैं बाद में आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा किसकी बात हो रही थी.
हाँ, मेरी समस्या दूसरी है कि मेरे को मॉडल में नहीं चाहिए। बाय कॉमन सेंस, बाय प्रैक्टिकलिटी आई नो कि यूनिक की का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पैसेंजर आईडी 123 इसका कोई मतलब नहीं है जिससे मैं सर्वाइवल प्रेडिक्ट कर लूँ। सो आई एम omitting इट फ्रॉम मॉडल ओनली, नॉट फ्रॉम डेटा। मैं उसे मॉडल में नहीं जाने दे। फैमिली बायनोमियल दैट यू नो एंड समरी। लेट्स सी। दिस इज द समरी यू एंड अप विथ। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड AIC ऑफ डिफॉल्ट मॉडल इज 593। ओके, 600 के आसपास है, तो मुझे इससे ज़्यादा नहीं जाने देनी है। कम करने की कोशिश करेंगे इसे यहाँ से। सो लेट्स स्टेप रिडक्शन, ये भी आप लोगों को मालूम है। many iterations run and finally we end up with बहुत सारे अनइम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स चले गए। AIC इज ओके, सीम्स लाइक गुड न्यूज। AIC लगभग वहीं का वहीं है, इनफैक्ट ड्रॉप ही हुआ है थोड़ा सा, बढ़ा तो नहीं। पहले मॉडल में 593 कुछ आया था ना, तो दिस हैज बिकम माय बेंचमार्क नाउ। इस 593 को ध्यान में रखते हैं हम मॉडल बना रहे, तो ठीक है, उससे तो नीचे गया है। वेरी वेल। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, बताएगा कोई जरा जल्दी से। राइट, एंड मल्टीकोलिनियरिटी चेक कैसे करते थे आप, VIS देखते, तो वही देख रहे हैं। एंड व्हाट डू यू से, शॉर्ट कर दी थी VIF, मैक्सिमम VIF इज 2.9। मतलब VIF इज ऑलरेडी अंडर कंट्रोल, ऑलरेडी पहले से ही बहुत ठीक है। वेरी वेरी डिसेंट सिनेरियो। तो कम से कम मल्टीकोलिनियर का तो प्रॉब्लम नहीं है आपके डेटा। पी वैल्यूज का कहानी बची, पी वैल्यूज की कहानी बची, पी वैल्यूज में देख लेते हैं। हाँ जी, पी वैल्यूज के अकॉर्डिंग कौन सा जाना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? जस्ट पे अटेंशन टू स्क्रीन एंड जस्ट पिंग मी, व्हाट डू यू फाइंड? हम्म, ठीक है, ऑब्वियस है। जहाँ जहाँ स्टार है वो तो इंपॉर्टेंट हो गए, जहाँ स्टार नहीं है एक तो ये है एम्बार्क्ड क्यू, पी वैल्यू इज 10%। दूसरा ये है पी वैल्यू इज 11%। हाँ जी, कौन सा जाएगा? जिसकी जितनी ज़्यादा पी वैल्यू वो उतना ज़्यादा निकम्मा। तो किसे हटाएंगे हम, जिसकी ज़्यादा थी पी वैल्यू। ठीक है, एम्बाउट क्यों, एम्बाउट क्यों क्यों जाएगा प्रसून? उससे ज़्यादा वाला है ना अभी। हाँ, पहले वो वाला जाएगा, एक पहले ये हटा के देखेंगे टाइटल मास्टर, उसके बाद देखते हैं। अच्छा, ओके। सो आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट दैट। दैट्स आल्सो सॉर्टेड। टाइटल मास्टर गॉन। समरी चेक करें। AIC इज पहले 590 थी, अभी 591 है, तो आई थिंक दैट्स राइट। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, परसेंटेज में देखूं कितना परसेंट चेंज हुआ है। यार 600 को 601 बोलो, कितना चेंज हुआ है? कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, नेग्लिजिबल। ओके, हाउएवर हम देख रहे हैं। ओके, यू सी एम्बार्क क्योंकि पी वैल्यू अब बढ़ गई है, एंड आई थिंक दिस इज द ओनली वन जो हमें हटाने के लिए अभी बाकी है।
सो वी गो टू नेक्स्ट इटरेशन। अब तक ये भी क्लियर देख लिया होगा आप लोगों ने कि पी वैल्यू हर बार चेंज होती है। दैट्स व्हाई आई सेड के वन बाय वन हटाते हैं, नॉट मेनी वेरिएबल्स एट इन वन गो। एक थ्रो में नहीं हटाएंगे सारे वैल्यूज। सो लेट्स रिमूव embark view this time and we go to summary. Okay. VIF is already taken care of. Pay attention to this model. रन करना चाहते हो रन करके देख लो। आई एम टेकिंग अ मोमेंट, pausing for a moment. हाँ जी, क्लैरिटी यहाँ पे। अभी तक आई थिंक सब ठीक ही ठाक चल रहा है। VIF हमने सबसे पहले ही देख लिया था, तो VIF का तो प्रॉब्लम पहले ही नहीं था, वो तो बात खत्म हुई। पी वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने 2-3 वेरिएबल हटाए एंड व्हाट डू वी एंड अप विद नाउ? ऑल सीम टू बी एट लीस्ट सबकी पी वैल्यू 5% से तो कम ही है। सिंगल स्टार तो सबके साथ ही आ रहा है। तो आई कैन बी वेरी मच कन्विंस्ड कि अब ये सारे वेरिएबल इंपॉर्टेंस तो रखते हैं, इम्पैक्ट तो डाल रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू प्रेडिक्शन। ये बात कर चुके हैं हम। वैलिडेशन डेटा में एक प्रोबेबिलिटी कॉलम इनिशिएट कर रहा हूँ, इसमें नहीं भी करूँगा, एक अलग से वेक्टर बना दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हर आदमी के लिए प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट हो जाएगी, अलग वेक्टर में आ जाएगी। वैलिडेशन में नहीं दिखेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। आई एम कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल with my logistic regression model, model number 4. So predict by log 4, new data is validation, and remember type is equal to response. कोई बता सकता है जल्दी से ये क्यों देते हैं? Why this extra parameter? Can somebody quickly respond to this? बात हुई थी इसके बारे में। Discuss that, no? Hmm, not exactly. Scale transformation, Siddharth. ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। सिग्मॉइड फंक्शन आया था, y इज इक्वल टू सिग्मॉइड फंक्शन, वो बड़ा भयंकर सा है ना। फिर हमने उसे मार पीट के इंसान बनाया, ऑड्स लिए, फिर लॉग ऑड्स लिए, रिमेंबर। तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या बनी थी? y डैश इज इक्वल टू mx प्लस सी, या बीटा नॉट प्लस बीटा वन सी, बीटा वन एक्स। लीनियर फॉर्म में लेके आए थे इसको। अब ये आउटपुट तो दे रहा है, लेकिन आउटपुट क्या दे रहा है? इट इज नॉट गिविंग यू आउटपुट y, इट इज गिविंग y डैश। एंड y डैश क्या होता था? y डैश क्या होता था? y डैश वाज log of odds, of y being 1, ये था, राइट। सो टाइप इज इक्वल टू रेस्पॉन्स इसी के लिए कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को ऑड्स लॉग ऑड्स मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिंपली प्रोबेबिलिटी बताओ, सीधे सीधे कि प्रोबेबिलिटी कितनी है इस आदमी की कि ये सरवाइव करेगा, y1 होगा। ठीक है, भूलो मत यार ऐसे, सिर्फ कोडिंग की वजह से ना ये थ्योरी पार्ट मत भूलो ऐसे धीरे धीरे। There are interviewers out there, and they are old school, and they are they have a
they have a thing for these conceptual aspects. उनका मानना ये है कि कोडिंग तो कहीं ना कहीं से तुम टेप टाप के कर ही लो। ये बताओ कर क्यों रहे हो? Why this sequence? Why this parameter? Why this argument? स्केलिंग कर ली तो क्यों कर ली? डमी वेरिएबल क्यों बनाया? ठीक है, समझ के करना है यार इन चीजों को। ओके, वेल अब हमारा रेस्पॉन्स प्रोबेबिलिटीज में आ रहा है। ओके, समरी देखूं तो समरी वैसे ही देख ली मैंने। किसी की प्रोबेबिलिटी देख रहे हो, उसने कितनी बचाई है? 1%, 1.8%। कुछ लोगों की ऐसी है, उनकी बता रहा है 95.9%। वाह। हाँ जी, अब क्या करना है मेरे को? मैनुअली 0 1 में कन्वर्ट करना है इनको। अब कर लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, 0 to 50% है तो उसे बोल दो सर्वाइव नहीं करेगा। 50% ऑनवर्ड्स है तो उसे बोल दो सर्वाइव कर जाएगा। यही तो कर सकते हैं, यही कह रहा हूँ मैं। वैलिडेशन में एक प्रेडिक्शन कॉलम आई थिंक आ गया हो। सो ये लोगों की असली हालत थी उनकी। सर्वाइव किया 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 किया, नहीं किया। ये मेरा मॉडल प्रेडिक्शन बता रहा है सर्वाइव करेगा 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 नहीं करेगा। यहाँ तक भी वो ठीक। हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखना था। हाँ, मैनुअली अच्छा नहीं लगता मेरे को कैलकुलेट करना एक्यूरेसी। सीधे कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखेंगे। तो सॉर्ट ये क्या हुआ? फैक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्फिगर मैट्रिक्स को फैक्टर ही चाहिए होता है। मैंने क्या बोला? सर्वाइव्ड। जो वैलिडेशन कॉलम में सर्वाइव्ड कॉलम है उसे तो मैं कह रहा हूँ एक्चुअल सर्वाइवल। एक नया वेक्टर बना दे रहा हूँ। एस फैक्टर में कन्वर्ट तो कर रही है। जो प्रेडिक्शन आया है अभी अभी, प्रेडिक्शन जो बनाया है उसे बोल रहा हूँ प्रेडिक्ट सर्वाइवल। एंड कैरेट पैकेज से कॉन्फिगर मैट्रिक्स प्रेडिक्शन सर्वाइवल अगेंस्ट एक्चुअल सर्वाइवल। यही करते हैं, सिंटैक्स यही होगा, प्रेडिक्शन वर्सेस एक्चुअल। पॉजिटिव क्लास इज इक्वल टू 1। पॉजिटिव 1 क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे? कोई बता सकता है जल्दी से क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, बाय डिफॉल्ट वो 0 को ले लेता है। मैं जिस क्लास को पॉजिटिव बताऊंगा उससे डिसाइड होगा कि ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव और वो सब जो भी हमने कहानी देखी थी उस दिन कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स की, उसमें किसको क्या माना जाएगा, पॉजिटिव किसे मानेगा, नेगेटिव क्या मानेगा, वो यहाँ से डिसाइड होगा। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स की कहानी तो बाद में है, पहले ये डिसाइड करें कि नेगेटिव कौन सा है और पॉजिटिव कौन सा। नाउ दिस इज द रिजल्ट। वी हैव एंडेड अप विद, हमारा वैलिडेशन में पता चला एक्चुअली 0 थे, हमने भी 0 बोला। समझ रहे हो कौन है ये? बात किए थे उस दिन। 0 इज नेगेटिव क्लास। ये 122 लोग वो हैं जो एक्चुअली सरवाइव नहीं किए हैं, नेगेटिव क्लास। और मेरे मॉडल ने भी बोला नहीं करेंगे, तो मेरे मॉडल का डिसीजन भी ट्रू था, ट्रू नेगेटिव हो गए। ये कौन हुए? 63 लोग जो एक्चुअली सरवाइव किए, यानी
मेरे मॉडल ने बोला ये पॉजिटिव क्लास में जाएंगे, 1 पॉजिटिव सेक्शन में जाने के लिए बोल रहा है मेरा मॉडल, और मेरे मॉडल का डिसीजन भी ट्रू था, एक्चुअली भी 1 ही थे, तो ये हुए ट्रू पॉजिटिव। अब तो याद होने लगा होगा ये कौन है, बताएगा बताएगा कोई? ये 15 लोग, ये कौन है? किसी को कंफ्यूजन इसमें? कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? मेरे मॉडल ने इन 15 लोगों को क्या बोला है कि ये पॉजिटिव क्लास के लोग हैं, ओके, लेकिन एक्चुअली पॉजिटिव के नहीं थे, मेरे मॉडल का डिसीजन गलत था, तो ये फॉल्स पॉजिटिव। फाइनली दिस, मेरे मॉडल ने ये बोला था नेगेटिव क्लास 0, लेकिन मेरे मॉडल का डिसीजन गलत था, तो फॉल्स नेगेटिव। कुछ तो ये कहानी पता चली। एक्यूरेसी कितनी आई हमारे मॉडल की? बहुत ही बढ़िया, आई थिंक 83%। हाँ जी, खुश हो जाना चाहिए फिर तो, बहुत बढ़िया आ गई। नहीं, आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस false positive and false negative, and try to think about it. My statement is accuracy alone can be deceiving. I should look out for something else also. In the context of positive and negative class, I am saying. Can you think of a reason? मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ? क्या गलत हो सकता है? Why this accuracy of 83%? If I trust this itself, I may go wrong. Where? Where do you think I may go wrong? Sankalp, do you mind switching on your mic and tell me how did it occur to you? What have you been thinking? Actually, this is the reason. Actually, this is the thing which. Oh, okay. Let's see a problem of बैंक से कुछ लोग लोन ले रहे हैं, से 100 कस्टमर्स लोन लेते हैं बैंक से. Some will default, some will not default. Now, what usually practical scenario is? हाँ, कुछ डिफॉल्ट करेंगे, कुछ डिफॉल्ट नहीं करेंगे. Now, what is usually scenario? Practical problems में what happens is, हाँ खुद से सोचो ना, यूजुअली लोग अच्छे होते हैं, तुम और हम कहीं बैंक में अगर लोन अप्लाई कर रहे हैं, वी विल नॉट हैव इन डे वन इंटेंशन टू डिफॉल्ट दैट लोन. यस और नो?
While taking loan, we will be highly hopeful and very enthusiastic and very much optimistic about it that we will pay in time and we will do everything, whatever it takes. On top of it, people take loan when it is uh, they need money for some essentials. हाउस लोन होगा, होम लोन होगा, या एजुकेशन लोन होता है, जैसे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ले लेते हैं। आप में से शायद किसी के पेरेंट ने लिया हो तो उनको मालूम होगा, राइट? तो ऐसी चीज़ों के लोन को डिफ़ॉल्ट करने की इंटेंशन होती नहीं है कस्टमर की। यूजुअली उनकी टेंडेंसी रहेगी कि पहले लोन पे कर दें, बाकी अपने शौक चाहे कम कर लेंगे थोड़े से। ठीक है ना? शॉपिंग नहीं करते इसमें। देन देयर आर इंटरनल चेक्स ऑफ बैंक। बैंक के अपने इंटरनल चेक्स इतने होते हैं दैट इवन इफ यू आर नॉट uh, intentionally trying to default, but your paperwork is not strong, right? Your background is seemingly like कि आपके पहले से 2 ईएमआई चल रहे हैं। आपको तो हाउस भी रेंट भी देना पड़ता होगा, 2 बच्चे हैं, उनकी फीस जा रही है, कैसे भरोगे? तो बैंक के अपने बहुत सारे चेक्स रहते हैं कि अगर इसका ज़रा सा भी रिस्की लग रहा है मामला तो लोन नहीं देते, उसको रिजेक्ट कर देते। इवन दैट आई डोंट नो इफ यू हैव फेल्ट इट, समबडी इफ यू हैव अप्लाइड टू लोन तो देखा होगा, ये पेपर दे दो, वो पेपर दे दो, गारंटी करा दो हो सके तो किसी से, और गलती से मान के लोन देने के लिए तो एग्रीमेंट, इतना मोटा एग्रीमेंट साइन होता है, कभी लोगे तो पता चलेगा, 50 जगह साइन करने पड़ते हैं। सो व्हाट आर दीज थिंग्स? ये बैंक इज जस्ट ट्राइंग टू फायरवॉल इटसेल्फ, फायरवॉल इट्स मनी, कि वो डिफॉल्टर आदमी के पास ना चला जाए, बी इट इंटेंशनल डिफॉल्टर और बी इट अनइंटेंशनल, बट यू नो इंटेंशन नहीं है लेकिन कैपेसिटी नहीं, ऐसे आदमी के पास ना चला जाए। तो यूजुअली ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या होगा, अगर 100 कस्टमर डिफॉल्ट करने आए हैं, डिफॉल्ट करने नहीं, लोन लेने आए हैं, डिफॉल्ट करने क्यों आएगा कोई? कैसी बातें करा रहे हो तुम? 100 कस्टमर आए हैं लोन लेने के लिए, डिस्पाइट दैट चलो मान लेते हैं डिफॉल्ट कर देंगे, लेकिन कितने करेंगे? मे बी 100 में से मे बी कोई 2 4 5। यस और नो? समझ आ रहा है मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं? मान लीजिए 10 लोगों ने फिर भी डिफॉल्ट कर दिया और बाकी 90 डिफॉल्ट नहीं करते, दिस वॉज गोइंग टू हैपन एक्चुअली। ये एक्चुअली करने वाले थे ये कस्टमर्स, फॉर एनी रीजन। ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकल सिनेरियोज में जल्दी से, स्पेशली इन दिस क्रेडिट कार्ड। ये तो एक्चुअली सिनेरियो होने वाला था, इससे पहले हमसे करा दिया प्रेडिक्ट किसी ने, कि प्रेडिक्शन बताना जरा, कौन डिफॉल्ट करेगा कौन नहीं करेगा। ये मेरे मॉडल का प्रेडिक्शन था। क्या प्रेडिक्शन था मेरे मॉडल का? मेरा मॉडल है गधा एकदम। मेरा मॉडल क्या कह रहा है? कोई नहीं करेगा डिफॉल्ट, सब अच्छे आदमी हैं। दे दो सबको लोन। इन ट्रू सेंस ये मॉडल ही नहीं है, इट इज नॉट प्रेडिक्टिंग एनीथिंग, इसे नहीं पता कुछ भी। नाउ टेल मी, नाउ टेल मी,
एक्यूरेसी होती है करेक्ट डिसीजंस डिवाइडेड बाय टोटल डिसीजंस। या प्रेडिक्शन लिखते हैं, डिसीजन नहीं कहते। करेक्ट प्रेडिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेडिक्शन। हाँ जी, इस मॉडल की एक्यूरेसी कितनी आने वाली है? बता सकते हो? ये तो बेवकूफ मॉडल ने कहा कि कोई डिफॉल्ट नहीं करेगा, सब नॉन डिफॉल्टर हैं, सबको पैसे दे दो। डिस्पाइट दैट इसके डिसीजन कितने करेक्ट हो रहे हैं? मिल गए। एग्जैक्टली। 90% एक्यूरेट है ये गधा मॉडल तुम्हारा। समझ आ रहा है? देख रहे हो ना, उसने 100 डिसीजन लिए, 100 के 100 को बोला नॉन डिफॉल्ट करेंगे, तो भी 90 ठीक हो गए उसके। और हम खुश हो रहे हैं कि हाँ 10% ही तो गलत हुए हैं। कितना बढ़िया मॉडल है। जरा बताना इसने डिफॉल्टर कितने पकड़ के बताया बैंक को। ये तो ये कह रहा सबको दे दो पैसे, ये 10 के 10 को इनको सबको दे दो पैसे, इन्हें भी दे दो, ये जो भागेंगे कल को। तो समझ आ रही है बात? कितना बढ़िया मॉडल बनाया हमने। एक्यूरेसी 90% है, डिफॉल्टर एक नहीं पता उसको, कौन करेगा? सो दैट्स वेयर that is the reason I was saying that accuracy alone can be deceiving। हम सिर्फ एक्यूरेसी पे रिलाई नहीं कर सकते, तो हम जाएं कहाँ? फिर बात किससे करें? टेल मी, बैंक का क्या इंटरेस्ट रहेगा? वही पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो फंडा देख रहे थे हम। बैंक का इंटरेस्ट किस में था? ये पता करने में कि यार ये बताओ ना, डिफॉल्ट कौन करेगा? जो नहीं कर रहे वो तो नहीं कर रहे। अरे यही तो बात थी, जो नहीं करेंगे वो तो नहीं करेंगे, पैसे दे देंगे बेचारे वापस। डिफॉल्ट करेगा कौन? उसे पकड़ के लाओ, उसका पता चले, तो हम कुछ सोचें। या तो उसे लोन ही नहीं देंगे, या पहले से दे दिया है तो हम देन वी विल कीप अ क्लोज वॉच ऑन हिम और हर, कि डिफॉल्ट नहीं करे, या जो भी उनको मेजर्स लेने होंगे। उनका इंटरेस्ट इन 10 आदमियों में है। तो वी कॉल दैट सेंसिटिविटी ऑफ द मॉडल। सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी इज तो सेंसिटिविटी को हम क्या कह रहे हैं? सेंसिटिविटी इज करेक्ट प्रिडिक्शन। करेक्ट प्रिडिक्शन कौन से? करेक्ट प्रिडिक्शन ऑफ पॉजिटिव क्लास डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन इन पॉजिटिव क्लास। इसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। हाँ जी, कितनी सेंसिटिविटी है आपके मॉडल की, जो अभी बनाया है ये? करेक्ट प्रिडिक्शन ऑफ पॉजिटिव क्लास कितने करेंगे इसने? करेक्ट प्रिडिक्शन पॉजिटिव क्लास में 0 डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इन पॉजिटिव क्लास, वो कितनी थी?
10, actually eventually 0. So this is sensitivity. Just similar aspect, but it's called specificity. ये क्या होता है? बिल्कुल उल्टा सेंसिटिविटी से. Correct prediction of negative class divided by total observations in negative. That's the specificity. आपने इस मॉडल की बात करें तो कितनी स्पेसिफिसिटी है इसकी, बताएंगे जरा? करेक्ट प्रेडिक्शन ऑफ नेगेटिव क्लास. कितने करेक्ट प्रेडिक्शन करेंगे? अरे सारे कर दिए. ये 90 लोग डिफॉल्ट करने वाले थे, उसने सबको बोला है ना कि डिफॉल्ट नहीं करेंगे, तो 90 के 90 ये तो ठीक ही हो गए होंगे. तो करेक्ट प्रेडिक्शन इज 90 डिवाइडेड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, वो भी 90 थी. 100% स्पेसिफिसिटी दे रहा है मॉडल आपका. ठीक है जी, फंडा क्लियर ये वाला. तो हम क्या कह रहे हैं, मुझे सिर्फ एक्यूरेसी पर भरोसा नहीं है, मुझे देखना चाहिए क्या कि मेरे मॉडल की सेंसिटिविटी कितनी है, स्पेसिफिसिटी कितनी है. तो अगर ये तीनों ही ठीक ठाक आ रहे हैं तब तो मैं बोलूं कि हाँ मॉडल कुछ मेरा काम का बन गया. बट इफ देयर इज इम्बैलेंस लाइक दिस, एक्यूरेसी 90 दिखा रहा है, सेंसिटिविटी तो 0 पे रखी है, अब स्पेसिफिसिटी कितनी हो, क्या करना है इसका? ठीक है, तो हम सिर्फ एक्यूरेसी नहीं देखते, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी देखते हैं, एंड वी ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन दिस, इन दीज थ्री रेशियोज. कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स में कहीं देखने को मिल रही है? देखोगे कैसे ये हर बार ऐसे टेबल बना के नहीं, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है. फंडा समझ आ गया ना? अगर फंडा समझ गए हो तो मिल जाएगा फिर वो तरीका, तरीका तो मिल जाएगा. वापस आते हैं, ये रहा कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपका. ये बनाया था हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स. सबसे ऊपर उसने वही आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना के दिया है, द क्रॉस टेबुलेशन, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव, वही सब कहानी. एक्यूरेसी उसने कैलकुलेट करके बता दी है आपकी कि करेक्ट डिसीजन आपके कितने हुए हैं, 83% हुए हैं. बहुत अच्छी बात है. किस कॉन्फिडेंस इंटरवल में काम कर रहे थे आप? 95% के. ये अभी बात करेंगे थोड़ी सी. नीचे आ जाते हैं. देन देर आर सेवरल अदर थिंग्स, दिस कापा एंड मैकनामारा. ठीक है, इन्हें अभी रहने दो, इनको इनकी बात नहीं करते फिलहाल. देर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये पढ़ लेना, स्टेट्स में मिल जाएगा, नहीं तो आगे पाइथन वाले मॉड्यूल में और डिटेल बात होगी. ये प्रिसीजन रिकॉल इन सब चीज़ों को लेकर के होता है. सो लेट्स नॉट वरी अबाउट इट, लेट्स स्टे विद दिस. सेंसिटिविटी, हाँ जी, क्या बता रहा है? एक्यूरेसी आपकी दिखाई थी 83%, सेंसिटिविटी कितनी है? समझ आई बात? आपका मॉडल करेक्ट प्रिडिक्शन देने में ओके 83% एक्यूरेट है, प्रिडिक्शन तो करेक्ट आ रहे हैं उसके. सेंसिटिविटी यानी मैं कह रहा हूँ अगर मेरा सर्वाइव तो बताओ, सर्वाइव कौन किया? उन्हें पकड़ने में उतना एफिशिएंट नहीं है. पॉजिटिव क्लास को सेंस नहीं कर पा रहा है. स्पेसिफिसिटी ओके, ये तो हमें पता है, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बोथ आर सम इन अ वे, दीज आर वाइस वर्सा काइंड ऑफ थिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप कम हो जाएगा. पॉजिटिव क्लास 1 है. अब ये भी समझ आ रहा होगा कि हमने पॉजिटिव क्लास 1 बोला है तो उसे समझ आया कि सेंसिटिविटी किसकी दिखानी है. अगर पॉजिटिव क्लास 0 बोला होता, समझ पा रहे हो,
तो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी हो गई, स्पेसिफिसिटी सेंसिटिविटी हो गई, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, फ्लडिंग तो नहीं हो गया? होना तो नहीं चाहिए। गोइंग, बता देना जल्दी, अरे मना करो ना जल्दी से, चुप क्यों बैठे हो? ओवरफ्लो तो नहीं हो गया? मना करो सबके सब जल्दी से। हाँ, डांट खाए बिना चलते ही नहीं। ठीक है। So this is about sensitivity, specificity. Now comes the question. I was saying that we will try to strike a balance. How do you think we can strike a balance between this? क्या ऐसा कर सकते हैं कि सेंसिटिविटी कुछ इंक्रीज हो जाए, स्पेसिफिसिटी शायद थोड़ी कम हो जाए? सी द अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड, हम कोशिश करेंगे कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी इक्वल हो जाए, मतलब इफ नॉट एग्जैक्टली इक्वल, एटलीस्ट आसपास आ जाए। इफ दिस इज 75%, दिस इज 76%, ओके, डूएबल, समझ आता है। एक्यूरेसी अपने आप आसपास आ जाएगा। अगर ये दोनों, सपोज दिस एंड दिस बोथ आर 80%, एक्यूरेसी विल ऑटोमेटिकली बी 80%। सो यही आइडिया है हमारा कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी अगर ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्पेसिफिसिटी जैसा भी केस देखा था 90% पहुँच रही है, लेकिन स्पेसिफिसिटी होती किसकी है? नेगेटिव क्लास की। मेरा इंटरेस्ट किस में है? पॉजिटिव क्लास में। मैं कह रहा हूँ ये इंप्रूव कर दो ना थोड़ी सी, ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, चल जाएगा मेरे को। कैन यू थिंक ऑफ सम वे टू स्ट्राइक दिस बैलेंस? नो, नोबडी, कुछ अंदाजा नहीं लग रहा। Okay, let's do one thing. Just, freshen up. Okay, it's 12:06 by my clock. ब्रेक कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक रहेगा। शायद ब्रेक मिलेगा तो शायद कुछ सोचना शायद कुछ समझ आ जाएगा इतना। Okay, let's resume at 12. Okay, resume at 12:17. Let's take a break of 10 minutes. Try to, meanwhile, try to think of a way क्या कर सकते हो उसका। Okay, connect in 10 minutes. Okay, some of you here. Very fine. हाँ जी, any idea you got about what has to be done? आया किसी को कोई आइडिया?
क्या करना चाहिए? Okay, let's understand. Let's understand. Sensitivity comes up. Our problem was that sensitivity was not as good as we expected it to be. पॉजिटिव क्लास में मैं चाहता हूँ ज़्यादा प्रिडिक्शन आए. What does it mean? It means एक्चुअल 1 इतने थे. एक्चुअल 1 यही तो थे. हमने क्या बात की थी अभी? सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी इज करेक्ट प्रिडिक्शंस ऑफ पॉजिटिव क्लास divided by actual observations of positive class. यही बात थी. एक्चुअली 1 कितने थे? ये थे. जो 23 हमने गलत किए थे वो, प्लस जो एक्चुअली हमने ठीक पकड़ लिए थे वो. यही बात हुई. सेंसिटिविटी कैसे इंप्रूव होगी? सेंसिटिविटी कैसे इंप्रूव होगी? सेंसिटिविटी ऐसे इंप्रूव होगी कि ये जो 23 हमने गलत कर लिए थे ये गलती कम हो जाए. ये 63 जो हमने सही पकड़े थे ये इंक्रीज हो जाए. सही बात है. ऐसे ही तो होगा यार. ये 23 जो हमने गलत कर दिए थे, अगर इनमें से भी कुछ ठीक प्रिडिक्ट हो जाते तो सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाती हमारी. ये गलत कैसे हुआ है? ये जो गलत हुए हैं ये गलत कैसे हुए हैं? जरा देखना. ये गलत ऐसे ही तो हुए हैं. मैंने बोला कि 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उनको 1 बोलो. यानी एक्चुअली कुछ 1 ऐसे थे, जिनकी प्रोबेबिलिटी मेरे मॉडल ने लेस देन 50 बताई है. उनको मैंने 0 बोल दिया. वही तो गलत हो गई मुझसे. वही गलत हुए हैं. बात समझ आती है ये वाली? कैसे दिख रहे होंगे ये उस n डायमेंशनल स्पेस में? मेरा सिग्माइड कर्व फिट हो रहा था कुछ ऐसा, जो प्रोबेबिलिटी बता रहा था डायबिटीज का. मैंने प्रोबेबिलिटी लगा दी यहाँ कि इससे ऊपर जो हैं उनको मेरा मॉडल बताएगा 1, इससे नीचे वालों को मैं मान लूंगा 0. गलत कौन हुए हैं? गलत वो डेटा पॉइंट्स हुए हैं जो इस कट ऑफ से थोड़ा बहुत नीचे थे. एक्चुअली 1 थे लेकिन प्रोबेबिलिटी मॉडल ने कम बताई है. ऐसा ही 0 में भी हुआ है. 0 की तरफ भी तो गलत किया है हमने. कुछ 0 थे, एक्चुअली 0 थे, लेकिन हमने 1 बोला. ऐसी भी गलती की है हमने. बात तो सही है, पर वो स्पेसिफिसिटी है, वो काम हमारा फिर भी चल रहा है, काफी हाई है. थिंक अबाउट इट. अगर मैं ये कट ऑफ थोड़ा सा नीचे ले, रादर देन 50 मैं कुछ और ले, तो ये जो 1 थे, ये जो एक्स्ट्रा 1 थे जो पहले छूट गए थे, कुछ नए 1 पकड़े जाएंगे. और वही तो चाह रहे थे करना कि कुछ नए 1 पकड़ लें. कुछ एक्स्ट्रा 1 पकड़ लूं तो सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाएगी. गलत क्या होगा इसमें? गलत भी देख लेते हैं. गलत क्या होगा? इसी ब्रैकेट में भाई जहां 1 है उनकी प्रोबेबिलिटी नीचे बताइए. कुछ 0 भी होंगे जो पहले हम ठीक प्रिडिक्ट कर रहे थे. इस कट ऑफ से नीचे जब हमने बोला था कि सबको 0 मानूंगा तो ये 0 ठीक पकड़े गए थे. लेकिन अब क्या होगा? इस वाली कट ऑफ में ये 0 ऊपर चले जाएंगे. यानी ये 0 मैं गलत कर दूंगा. एक्चुअली 0 थे, मैं इनको 1 बोलूंगा. यानी स्पेसिफिसिटी डिक्रीज हो जाएगी.
बात समझ आ गई? ये करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा नीचे ले लो इसको, 50% की जगह मैं कह रहा हूँ 35% पे ले लो इस प्रोबेबिलिटी को। तो 0 1 वैसे आ गए होंगे 35 के हिसाब से। 35% से नीचे वाले सब 0, ऊपर वाले सब 1। अगेन एक्चुअल सर्वाइव, प्रेडिक्टेड सर्वाइव चेंज हो गया ना, तो दोबारा असाइन कर लिया मैंने। एंड दिस टाइम इफ आई सी कॉन्फिडेंस मैट्रिक्स, व्हाट डू वी सी? सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, और जब दोनों बैलेंस हो गई तो एक्यूरेसी अपने आप इनके इक्वल होगी। ठीक है जी। अच्छा, तो एक काम ना करें सर, हमारा इंटरेस्ट था 1 पकड़ने में, और पकड़ लेते हैं। अगर इसे और नीचे ले जाऊं तो शायद और पकड़े जाएंगे, और भी बढ़िया बात होगी। देख लो करके, चेक इट आउट। और नीचे ले गए कट ऑफ। हाँ, तो अब और भी जो नीचे 1 छूट गए थे, इससे भी कम प्रोबेबिलिटी आई थी जिनकी, वो भी पकड़े जाएंगे। आओ देख लेते हैं पकड़े गए क्या। हाँ, पकड़े गए। सेंसिटिविटी अब 85% के आसपास आ गई है। बट देख रहे हो स्पेसिफिसिटी में क्या हुआ है? नाउ योर स्पेसिफिसिटी इज अनरीजनेबल। अब तुम क्या कह रहे हो? जो एक्चुअली सर्वाइव नहीं होने वाले थे उनको भी जबरदस्ती 1 बताते जा रहे हो। ओवरऑल एक्यूरेसी पे भी यस इम्पैक्ट आया है, इट हैज ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड, वो हम क्या मान के चलेंगे दैट इट हैज देयर हैज टू बी अ बैलेंस, sensitivity specificity should be equal or almost equal, as close as possible. चलो ठीक है, क्लोज क्लोज का भी देखेंगे। ये 35 कहाँ से मिला? 35 रख दिया था ना मैंने फटाक से 35 रखा, और सब चीज़ें बैलेंस हो गई। ये 35 कहाँ से मिला? क्या कोई तरीका है इसका? यस, यू विल फाइंड इट आउट सोन एनफ। एक हेड स्टार्ट दे रहा हूँ। इट इज मैनी टाइम्स इट वर्क्स, रेयरली इट हैपेंस के वेरी स्पेशल केस कोई होगा तो you may not give result, but usually it has been seen in umpteen number of experiments। जब ये probabilities आती हैं, ये जो probabilities का आउटपुट आता है,
See, there is a gap in mean and median. It can be either way. मीन मीडियन से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ये ऑलमोस्ट इक्वल भी हो सकते हैं, आसपास भी हो सकते हैं. सो दैट इज द ट्रिक. यू कैन स्टार्ट ऑफ बाय हिट एंड ट्राई. यू टेक मीन वैल्यू and you go towards the lower value. If mean is smaller, you can go towards the higher value. ठीक है, तो हिट एंड ट्राई करना पड़ता है थोड़ा सा, बट सून इनफ यू विल स्ट्राइक अ बैलेंस. You don't have to go to you know nth place of decimal. वो भी नहीं ज़रूरी. You can just be on percentage kind of thing and that should strike a reasonable balance. आ जाता है. ठीक है जी, फेयर. यहाँ तक हमारा मॉडल. कितनी होगी कहानी. हमारे पास रॉ डेटा आया था हैकाथॉन से, एक अवेलेबल डेटा सेट था ट्रेन, एक टेस्ट डेटा सेट था जिस पर प्रेडिक्शन करना है. हमने मॉडल बनाया, उसमें से अननेसेसरी वेरिएबल्स हटाए. मल्टीकोलिनियरिटी था नहीं, नहीं तो वो भी ट्रीट करते. डेटा क्लीन किया था उससे पहले, वो सारी चीज़ें कहानी आप लोगों को मालूम हो गई. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी. और अब हमारा मॉडल तैयार है, हमें कट ऑफ भी पता है क्या कट ऑफ से काम कर रहा है ये. सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी में बैलेंस क्या है. नाउ इट कम्स टू द सबमिशन ऑफ हैकाथॉन. जिन लोगों ने सबमिशन देखा होगा, कैसा था सबमिशन फाइल, देखा है किसी ने. सबमिशन फाइल आप देखोगे ना, जो उन्होंने हाँ सबमिशन मांगा है, सबमिशन फाइल यूजुअली हमेशा ऐसा सही होगा. तो ये तो किसी और फाइल का दिखा रहा हूँ मैं सबमिशन, बट यू कैन जेल टू इट. यूनिक आईडी बोला होगा उन्होंने कि मुझे और कुछ ही बात से मतलब नहीं है, आप मुझे बस ये बताओ कि कौन सा तो पैसेंजर था वो. आइडेंटिफाई किससे होगा, यूनिक की से. और उसके बारे में आपका प्रिडिक्शन क्या कहता है. जीरो कहता है कि वन कहता है, यस कहता है, नो कहता है, ट्रू कहता है, फॉल्स कहता है. इफ इट इज कॉन्टिन्यूस टारगेट वेरिएबल तो वो कॉन्टिन्यूस वैल्यू क्या है. सिर्फ दो कॉलम से मतलब है उनको, वही कह रहे हैं. आओ कर लेते हैं प्रिडिक्शन. प्रोबेबिलिटी सर्वाइव आनी थी, समरी देखेंगे. समरी तो खैर क्या ही देखोगे आप. प्रेडिक्शन करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइव्ड. मॉडल वाज लॉग फॉर एंड डेटा दिस टाइम इज. हाँ जी, डेटा दिस टाइम इज टेस्ट डेटा. टेस्ट डेटा. ठीक है, तो टेस्ट डेटा में हमने एक नया कॉलम नहीं बनाया. प्रोबेब सर्वाइव हमने अलग ही बनाया. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटीज जो हमारे मॉडल ने दी हैं टेस्ट डेटा सेट पे. तो टेस्ट डेटा सेट में ओरिजिनली तो सर्वाइव कॉलम था ही नहीं. अब हम क्या कह रहे हैं, वही कट ऑफ हमने अभी डिसाइड किया था कि इससे अच्छी बैलेंस आता है. टेस्ट डेटा सेट में एक सर्वाइव्ड कॉलम, बन जाएगा जहां पर प्रोबेबिलिटीज के अकॉर्डिंग 0 और 1 आ गए होंगे. देखें आ गए हैं क्या. ये हुआ मेरा प्रेडिक्शन. मेरा काम है सबमिट करने का इसको, तो सबमिट कर देते हैं. सबमिशन के लिए मुझे क्या चाहिए, एक सबमिशन फाइल बना रहा हूँ. सबमिशन फाइल में क्या आना चाहिए, टेस्ट डेटा सेट का. हाँ जी, कौन सा कॉलम,
एक तो पहला आईडी और एक लास्ट सर्वाइव्ड। ये कौन सा नंबर है? 19। हाँ तो कॉलम नंबर कॉलम नेम जैसे भी देना हो वैसे दे दो। ये बना मेरा सबमिशन फाइल 2 वेरिएबल का। यही मांगे गए हैं आपसे वहाँ पे, पैसेंजर आईडी और सर्वाइवल हुआ कि नहीं हुआ। नाउ हियर अगेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ, बिकॉज दीज आर ऑटोमेटेड सबमिशंस। अगर कॉलम नेम गलत हो गए, स्पेलिंग मिस्टेक, अपर केस लोअर केस, ये सब दुखी करने वाले हैं आपको, सबमिशन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इनफैक्ट नंबर ऑफ रोज भी अगर आपके गलत हो गए तो भी सबमिशन एक्सेप्ट नहीं होगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब मुझे ये CSV फाइल चाहिए। हाँ, रीड करने के लिए रीड डॉट CSV होती है, राइट करने के लिए राइट डॉट CSV। मैं कह रहा हूँ राइट कर दो सबमिशन फाइल। इस सबमिशन फाइल का नाम रख दो सब वन डॉट CSV, बिल्कुल वैसे जैसे रीड कर रहे थे, अलॉन्ग विद नेम डॉट एक्सटेंशन डबल कोट सिंगल कोट जो भी करते थे सारी चीज़ें। and just one extra parameter I am telling, row name is equal to false, and let's see what happens. जो भी आपका वर्किंग डायरेक्टरी सेट होगा वहाँ पर एक ऐसे फाइल राइट हो जाएगी, और CSV फाइल नाम वही जो मैंने कोड में लिखा था सब वन। एंड इफ आई चेक, हाँ वही फाइल है ये, 2 कॉलम पैसेंजर आईडी और सर्वाइव। पैसेंजर आईडी इतना था, सर्वाइवल ऐसा ऐसा था। चलो देखें, चेक करें मेरा स्कोर कितना आता है। चलो देखते हैं। ओके, दिस वाज द होम पेज जहाँ से हमने डेटा सेट लिया था, प्रॉब्लम समझा था, सब चीज़ देखी थी। And here is the option to submit predictions. So let's submit. So this is the, okay, this is the drop section. Nothing specific, just drag and drop, or maybe upload, giving your machines file path, and upload it. Then it gives you to, okay, you can give a brief note so that you remember कि आपने क्या किया था इसमें, ये वाला सबमिशन कैसा था। So I am saying it was logistic regression, 35% cutoff probability. So this is nothing, this is for you to recall when you will be doing multiple submissions, तो याद रहना चाहिए कौन सा सबमिशन कौन से मॉडल से किया था। So it is just trying to help you out, and I have made submission. Let's see. You see, it is telling me I have 9 further submissions, so you can do 10 submissions in uh, roughly every 20 hours. What else? Submission is complete. It is telling me what is my score. My score is 0.722. I don't know what that means. Let's go to leaderboard. देखते हैं मेरा हुआ क्या है। And on leaderboard, कहाँ हूँ मैं? Here I am. ठीक है जी। मेरी रैंक आई है कितनी? कितनी कितनी है ये?
201 नहीं, उसके आगे डॉट देख रहे हो, 3 डॉट लगे हुए। मे बी दिस इज अ रैंक, समथिंग काइंड ऑफ रोल नंबर, वैसे कुछ रैंक आई है मेरी। There are options to team up also. You can make your teams also. You see the toppers score? इनके स्कोर देख रहे हो? Yeah, don't worry, don't lose heart. Most of them are cheaters. हाँ, ये क्राइटेरिया हर हैकाथॉन में अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा शुभम। In this hackathon, it is perhaps accuracy. In some, they will mention that it is sensitivity or specificity. किसी किसी में आप देखोगे it is F1 score, कहीं precision, recall. So there are many measures to measure the fit of the model. Accuracy हमने अभी अभी देखा, accuracy is deceiving. तो उससे अच्छा है कि हम sensitivity या specificity या इस तरह की किसी measure की बात करें। Precision and recall are another twist of this TNTP, FPA, FN. So you can very elaborate page on Wikipedia about confusion matrix. So I would want you people to go through it for once. It will mention many things. ठीक है जी, सारी कहानी पूरी हो गई। अब कर लोगे? तो अब now you have moved another step forward. अब तुम्हें सबमिशन भी मुझे नहीं करना है, सबमिशन भी तुम हैकाथॉन पे डाल के देख लेना हाउ गुड यू आर डूइंग। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों ने फेस किए इस डेटा सेट में, मैनी कॉम्प्लेक्सिटीज एंड मैनी थिंग्स यू टैकल्ड लाइक अ प्रो। बहुत सारी चीज़ें अब आप सीख गए हो सबमिशन डालना। देन देयर आर अदर डेटा सेट्स ऑन कैगल, सो जस्ट प्ले अराउंड, जस्ट एक्सपेरिमेंट, देखो कौन सा डेटा सेट है, कौन सा आपके उसमें अभी तक हो पा रहा है। देयर विल बी, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम आई वुड से, कैगल के बहुत सारे हैकाथॉन्स ऐसे होंगे जो बिग डेटा से गवर्न होते हैं, और द डेटा सेट्स which are not for these kind of machine learning, they are actually for image recognition or speech research, this kind of। तो तुम्हें यू विल स्ट्रगल ऑन दैट, कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन सा डेटा आ गया, ये इसका करना क्या होता है। एक्चुअली वो करना ही नहीं है, अभी तुम पहुंचे नहीं हो वहाँ पे। तो यू कैन गो टू दैट, और आई कैन टेल यू अनदर प्लेटफॉर्म which is, in fact, let's do this. Log in right now, go to this platform, analytics with you, here in the chat box. Again, same kind of drill. You log in or register, you can do that by your Google account in a jiffy. Right? And once you log in or sign up, you will see this page, and you go to this hackathon here.
It may ask you while first sign up, it may ask you whether you are a student. So don't check that. Well, I should not be asking you that. It is entirely your wish, but I'm just giving you a head start. It will happen that if they find out you are a student, they will, you know, they will flood you with emails and texts and whatnot regarding various capsule courses, this and that, and various reading material, this and that. Here now, everybody, with me on this hackathon stage. Okay, scroll down, you'll see there are various competitions and events. So let me brief you a little bit. Hackathon, this Analytics Vidya is another very popular platform, and you know, maybe we can brag about it, feel proud about it. Totally Indian. It is a Gurugram-based company, and they host various hackathons. They involve prize money also, like Kaggle. They are also many times involving prize money, but Analytics Vidya is not focused on prize money that much. Their focus is like मैंने शायद डिस्कस भी किया हुआ आप लोगों से. There are various organizations which hired through hackathons. वो इस तरह से नहीं है कि they will वो नौकरी पे पोस्टिंग डालेंगे और लिंक्डइन पे पोस्टिंग डालेंगे and then they are going to interview. No, they will simply hire hackathons, participate there. If you are in top 10, top 5, top 20, something that kind of thing, and maybe you stand a chance. So in that context, Analytics Vidya is a very reputed platform. A few organizations, if I name, who hire through Analytics Vidya are WNS, American Express, L&T, Infotech and Finance both, Tech Mahindra, Max Insurance, Life Insurance. Rings a bell? सुने सुने से नाम है कुछ? In recent years, this Analytics Vidya has become a very reputed platform for these things. So I would say that log in here, keep an eye on these things, and start building your profile here. Kaggle is a what do I say? Kaggle is a bit distant fruit right now for you people. ठीक है, वो जब थोड़ा सा बिग डेटा, थोड़ा सा पाइथन कुछ हो जाएगा तो कैगल भी काबू में आने लगेगा आप लोग. But for now, yes, you can very much fight in these times of this big mart sales, Black Friday sales prediction, loan prediction, loan में default करेगा कि नहीं करेगा कोई, kind of these things. And okay, age detection, don't go there. It is again image recognition. छोड़ देना इसको. व्यू और भी देख सकते हो, बहुत सारे इस पे हैकाथॉन, मेरे ख्याल से शायद अभी भी कोई चल रहा होगा ऐसा. Last year they hire last year in some शायद I think October or November, this Analytics Vidya, they conducted All India Machine Learning Contest, and boy, it was something. There were more than 20 companies, and they hired for hundreds of vacancies from that hackathon. Okay, here is a quick summary. Whether it is for hiring, you can filter out hackathons. Whether it is for money or practice or just it is how many are on, how many are active, how many are upcoming. So keep an eye here. Keep a check on these pages. Yeah, I don't exactly know, Vasundhara, whether it was straight hiring or was there an interview. I
I consider there would have been interview. But you know, when it is interview after hackathon, it is not about technical skills. They know you got technical skills. That's why you are in top 10, no? Top 10 or top 20 or top 50, whatsoever they were their criteria was. Now the interview is for your interpersonal skills, nothing else. Actually, that is, you know, another aspect which is really important in this domain. Okay, just a couple minutes more. Let's get back to business. I found that out, I think. Here it is. I'm dropping the link directly if you can't find it. अभी तक आप लोगों ने शायद एचआर का डेटा डील नहीं किया है कोई भी. This becomes your end-to-end project, Vasundhara. So far, I have been what we have been doing. You are in groups. Okay, groups में तो आप अभी भी रहेंगे and you can connect among yourself. But when it comes to that, you can get back to me and I will help you out. So no, that kind of questions are going to be open-ended about this hackathon. I'm getting there, Vasundhara. Yeah, please be patient. Have some patience with me. I'm getting there. This is the hackathon to give you a taste how further hackathons are going to be. This is just a practice data set, but why this is one is my favorite is this was an actual hackathon. If you check the link, if you have a keen eye and you see the link, it was hackathon organized by WNS. They used it for hiring in 2018. When they hired it, this data became public and now it is available for practice. But any day, it is fantastic hackathon. The good part is they used it for hiring, so you can be very sure that this is going to be a fantastic problem. So this can be one benchmark कि आपको जब हायरिंग के लिए आप लोग यू विल बी इन द टेस्टिंग वाटर्स रियली, तो किस तरह का डेटा यू कैन एक्सपेक्ट, किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हो सकता है उसका. And to give you a real world taste, I will not be available for this. I'm not asking for submissions. I'm not asking for to attempt even. I'm just giving you pointing you in the right direction. What can be your stepping stone? So if you start off with this, brainstorm among yourself, Google a lot, think about several things like crazy. And for that matter, there are 33 days to go. So that's another good part, another good thing. Enough time to go about this. प्रॉब्लम समझिए. एंड टू एंड क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको? अभी आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन जानते हैं क्लासिफिकेशन के लिए. दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. बता देता हूँ आगे. दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. पढ़ के आपको समझ आएगा. दिस इज नॉट अबाउट कॉन्टिन्यूस टारगेट, इट हैज अ कैटेगोरिकल टारगेट. अभी आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन जानते हैं. आने वाले समय में अभी आप नेक्स्ट करेंगे के एन एन, देन समथिंग एल्स, देन समथिंग एल्स.
So you will have some 5-6 models. Try them all. देखो किससे क्या रिजल्ट आता है. इस डेटा में ऐसा क्या था कि इस एल्गोरिदम ने अच्छा काम किया, दूसरे ने नहीं किया. So there are one complete month between this, and within this month we will do several new algorithms. अभी देखेंगे. ठीक है, तो आई होप मजा आएगा आपको. बढ़िया. सेटल. Yeah, people make some noise. It should be exciting, यार. चलो. Okay. Very fine. I'm turning off recording, but if there is any questions, I'll stay for another couple of minutes. If there is no further question, you are free to leave. Bye bye and take care. We will connect tomorrow, same time.